Hello friends, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now we are starting differential equations. Now here we will learn what is all about differential equations, what are differential equations, how they are formed, how they are solved, everything we'll study in great detail, right? As you can see, the first topic, now here on the left corner below my pic, you can see the topic is written first order ODEs, first order ordinary differential equations. We'll study everything. What is first order, what is basically order, what is ordinary, everything we'll study in detail, right? And gradually we'll move on. Well, this is a very beginning and initially we'll be having very simple topics, right? तो चलिए start करते हैं अपनी journey. We will provide you the study materials as well. This kind of material will be available for you. You will get the PDFs and all from the website. Okay, first of all, what is a differential equation? You can see I have written a definition. What is a differential equation? Any equation which has some differential coefficients. एक ऐसी equation जिसमें differential coefficients होते हैं उसको बोलते हैं differential equation. अगर simple differential coefficients हैं तो simple difference या ordinary difference equation. और अगर पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट. ओडीई जो मैं बोल रहा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ वी हैव सिंपल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स dy by dx, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ठीक है. अगर सिंपल डेरिवेटिव्स हैं तो वी कॉल इट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड इफ वी हैव पार्शियल डेरिवेटिव्स इन द इक्वेशन वी कॉल इट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. एक एग्जांपल दे देता हूं, देखिए आपको. जैसे मैं suppose we have this thing dy by dx plus 2y is equal to x square. Now this is the equation. Certainly we have left hand side, we have right hand side, and we have this differential coefficient, and this is simple differential coefficient, so we call it ordinary differential equation. Ordinary differential equation. Again, let me write one more equation. D square y by dx square plus y dy by dx plus x square is equal to 2y. Now again, in this equation we have only simple differential coefficients. We don't have partial differential coefficient here. So this is simple differential coefficient. It is of second order differential coefficient, but it is simple differentiation. It is also simple differential coefficient, so it is an ordinary differential equation, ODE. But instead of this, if I have d square y by del square y by del x square plus x del y by del x plus 3y is equal to 6, then here we have partial differential coefficients, so we call it partial differential equation, right? So initially, in the initial stage of our syllabus, maybe up to 60% of the syllabus or 70% of the syllabus, we will be discussing only ordinary differential equations, and in the last 30-40% we will be discussing partial differential equations, right? Fine. Okay, so I hope now this thing is clear. What is ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात नहीं, उसके ऊपर आता हूं मैं अब, ठीक है. देखिए वापस आपको लेके चलते हैं नोट्स के ऊपर. व्हाट इज ऑर्डर? व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट. इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट. जैसे देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट मेरे पास इक्वेशन लिखी थी मैंने, जो नंबर 1 पे इक्वेशन लिखी है, उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर कितना है? फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, राइट. सेकंड जो इक्वेशन लिखी है मैंने वहां पे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का क्या ऑर्डर है? हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इट इज सेकंड ऑर्डर, राइट. जो डिफरेंशियल हमने कोफिशिएंट लिखा है उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है, दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे ही इस PDE का भी सेकेंड ऑर्डर है. सपोज आई राइट दिस थिंग x इंटू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी स्क्वायर वाई बाय
dx square plus 2 dy by dx is equal to 0. Suppose I have written this equation. Now here we have this thing is differential coefficient, this thing is differential coefficient, this thing is also differential coefficient. Which one is the highest order differential coefficient? This is highest order. And what is its order? Order is 3. So the order of this differential equation is 3. Its order is 3. Now what is degree? What is degree? The power of highest order differential coefficient is the degree. The power of highest order differential coefficient is degree. Now here this is the highest order differential coefficient, its power is 1, so here degree is 1. Here this is the highest power differential coefficient, its power is also 1. This second order is highest order differential coefficient and its power, no power is there, so its power is 1, so degree is 1. Here again this is the highest order, degree is 1. Here in this equation you can see that this is the highest order differential coefficient and its power is 2, so here degree is 2. Order is 3 and degree is 2. So one thing is very simple. अच्छा एक चीज और लिख देता हूं मैं, उससे फिर आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी. Suppose I write this thing, x d cube y by dx square dx cube raised to power 4 plus y d square y by dx square raised to power 5 plus 2 dy by dx raised to power 6 is equal to y power 7. Now what is its order? इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे? हाईएस्ट है थर्ड ऑर्डर, सो इट्स ऑर्डर इज 3. इसका ऑर्डर क्या है? 3. एंड व्हाट इज इट्स डिग्री? डिग्री कितनी है? अब डिग्री 7 नहीं है यहाँ पे, 6 नहीं है, 5 नहीं है. हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? हाईएस्ट ऑर्डर की पावर है 4. ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है? 4. ये हाईएस्ट ऑर्डर है, इसकी पावर है 4, तो डिग्री कितनी है? 4. क्लियर? कोई इशू तो नहीं है सर? ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पर. देयर आर सम क्वेश्चंस. मैंने बता दिया आपको ओडी क्या होता है, पीडी क्या होता है, बता चुका हूँ मैं. ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं, मैं बोलता जाता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अपने पास. फर्स्ट का ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 है, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर भी 1 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1. सेकंड में हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर नहीं दे रखी तो 1 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1. ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में y डबल डैश है ना मेरे पास, तो अगर y डबल डैश है तो y डबल डैश में ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन y डबल डैश की पावर नहीं दे रखी, तो पावर यानी 1 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1. थर्ड क्वेश्चन में y डैश का स्क्वायर है, वी हैव ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव, सो ऑर्डर इज 1 बिकॉज वी ओनली हैव y डैश. थर्ड क्वेश्चन, एंड बट y डैश हैज पावर 2, सो डिग्री इज 2. ओरल क्वेश्चन है सर ये तो. फोर्थ क्वेश्चन, we have y triple dash. What does it mean? Order is 3 and y triple dash की पावर नहीं दे रखी तो पावर 1 है, तो डिग्री is 1. ऑर्डर 3 डिग्री 1. फिफ्थ क्वेश्चन, we have y triple dash as highest derivative, तो ऑर्डर is 3 और y ट्रिपल डैश की पावर है कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, तो डिग्री is 1. भले ही y डबल डैश का स्क्वायर है, उसको नहीं देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, we have y triple dash as highest derivative. y triple dash is highest derivative, तो highest derivative थर्ड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 3, और उस थर्ड डेरिवेटिव की पावर है 2, तो डिग्री इज 2. ऑर्डर 3 डिग्री 2. राइट. सेवंथ क्वेश्चन, y डैश ऑर्डर 1 डिग्री 1. एट्थ क्वेश्चन, y डैश पावर नहीं दे रखी, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1. नाइन्थ क्वेश्चन, y डबल डैश, तो ऑर्डर 2 और y डबल डैश का स्क्वायर भी है, डिग्री 2. 10th क्वेश्चन, y डैश प्लस साइन y डैश, ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1. ठीक है, क्योंकि y डैश की पावर नहीं मेरे पास यहाँ पे, ऑर्डर 1 डिग्री भी 1. समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है. ठीक है, अब हम लोग इस बात पे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हाउ डू वी सॉल्व. देखिए, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन से जब लीनियर इक्वेशन लेकर आते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन लेकर आते हैं, तो वो सॉल्यूशन है. वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फ्रॉम दैट वी फाइंड एन अलजेब्रिक इक्वेशन.
एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वो जो हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन निकाली, दैट एल्जेब्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन and this is algebraic equation corresponding to this differential equation. So the algebraic जो है, it is a solution of this differential equation. Now if the algebraic equation has some arbitrary constants, it has some arbitrary constants, then we call it general solution. What do we call? General solution. And if the algebraic equation does not have any arbitrary constant, we call it particular solution. What do we call? We call it particular solution. Let me give you one example. Suppose I have this thing. dy by dx is equal to 1. Suppose this is a differential equation. So what I can do? I can take dx on the other side. Dy is equal to dx. Now I will integrate both the sides. Integrating both the sides. Integration of dy is equal to integration of dx. Integration dy is y, integration of dx is x, and when we are doing indefinite integration, we have to add some constant of integration, which is c. So this is the algebraic equation corresponding to this differential equation. So I can write that y is equal to x plus c is the general solution of dy by dx is equal to 1. Why general? Because it has one arbitrary constant. C is arbitrary constant. And one thing I must tell you, if the order of equation is 1, order matlab highest differential coefficient, if order is 1, it will have one arbitrary constant. If order is 2, it will have two arbitrary constants. If order is 3, it will have three arbitrary constants. So the number of arbitrary constants will be equal to the order of differential equation, right? Since here the differential equation has order 1, I'm not talking about degree, I'm not talking about the power of dy by dx, I'm talking about what derivative we have. We have only first derivative, so that means order is 1, and since order is 1, so the solution will have one arbitrary constant. If we would have second order differential coefficient d square y by dx square, its order is 2, then the solution of such equation will have two arbitrary constants. I will show you. A long process. It is a long process, long journey. We have just begun. अभी सिर्फ शुरुआत की है. ठीक है. Now since we have C, we have one arbitrary constant here, so I call it general solution. Now if question gives you that let y0 is equal to 1, what does it mean? This means when x is 0, y is 1. Because what do we have? Y depends upon x. Y is a function of x. So this inner value represents x and this value represents y. So when x is 0, y is 1. And we call it initial value. What do we call it? We call it initial value. And when this kind of value is given, we call it initial value problem. Now using this value, I can obtain the value of C. And after getting the value of C, I will get the solution, which will be called particular solution. Particular. Because there we won't have any arbitrary constant. That solution is particular because it is based upon this condition, y0 is equal to 1. If you change this condition, the solution will change. It is particular for this, right? Now in this equation, if I put x0, y1, what do we get? We get 1 is equal to 0 plus c, that means c is equal to 1. So therefore y is equal to x plus 1. This is the particular solution. Is the particular solution of dy by dx is equal to 1. So I have illustrated you what is the general solution.
I have illustrated you what is a particular solution. And one thing you must note down, the name of the chapter is first order ordinary differential equations, first order ODE. So we won't be having second order equations in this chapter. We won't be having partial derivatives in this chapter. Clear? But this does not mean that those things won't come in this syllabus. They will come, but later on. First we have to be familiar with simple steps. Once we get familiar with first order, then we'll move to second order, and then we move to some more things. Gradually we'll move to everything. It will take time. Right? So now first of all, I have discussed this thing. First of all, I will teach you how can we formulate a differential equation from an algebraic equation, and then I will teach you how can we form an algebraic equation from differential equation. Differential से algebraic निकालना मैंने बताया, आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, और इफ वी हैव algebraic equation उसे differential चाहिए तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ. इक्वेशन लिखता हूँ, फाइंड differential equation corresponding to x square plus y square is equal to a square, where a is some arbitrary constant. A is some arbitrary constant. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. अब उल्टा बोलता हूं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ऑर्डर होगा. यानी इसमें अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको सिर्फ हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. जिस इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसको हम दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. जिस इक्वेशन में तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उसको हम तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे. याद रखिएगा इस बात को, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए उसको उतनी बार ही करेंगे डिफरेंशिएट. इसको एक ही बार करेंगे सर. ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको फॉर्मेशन के समय. तो आइए जी फॉर्मुलेट करते हैं. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. डिफरेंशिएटिंग with respect to x, what do you get? 2x plus 2y into dy by dx is equal to 0. That means dy by dx is minus 2x by 2y. That means dy by dx is equal to minus x divided by y. So this is the differential equation corresponding to that equation. Therefore dy by dx is equal to minus x by y is the differential equation corresponding to x square plus y square is equal to a square. I apologize for my poor handwriting. ठीक है, इनिशियली मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ. थ्रू आउट मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन सरफेस पे ऐसा इतना अच्छा लिख नहीं पाता हूँ. आई ट्राई वेरी हार्ड, बट क्योंकि फोकस समझाने पे भी रहता है तो कई बार वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं. बट आप कोशिश कीजिएगा आप समझ पाएँ. कोई इशू हो तो बता दीजिएगा, ज़्यादा दिक्कत लगेगी तो कुछ करेंगे उसका उपाय. और फिलहाल लेट्स रिटर्न टू द टॉपिक. ये बात समझ आ गई. बड़ा बेसिक क्वेश्चन लिया था मैंने. अब धीरे धीरे कुछ चीज़ों को और आगे लेके चलता हूँ. ये जो बुकलेट है यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. ज़रा देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है, वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. यहाँ पे ए एक ही है सर, चाहे दो बार आ रहा है लेकिन है एक ही. तो वी हैव ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. वी कैन डिफरेंशिएट इट ओनली वंस. याद रखिएगा, we have one arbitrary constant, we can differentiate only once. If we have two arbitrary constants, we can differentiate twice. 3 constants thrice. 4 constants 4 times. Likewise करके दिखाते हैं. y square minus 2ay plus x square. y square minus 2ay plus x square is equal to a square. Am I right?
ठीक से नोट डाउन किया मैंने? ठीक है जी, सही नोट डाउन किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट डू यू गेट? y स्क्वायर को जब विद x करेंगे तो क्या आएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, माइनस 2a एज इट इज y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर का 0। तो अब dy बाई डी एक्स यहाँ रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब एक बात और भी आपको देखनी है कि आपके फाइनल आंसर में ना a नहीं आना चाहिए सर। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाना चाहिए सर। तो उसकी वैल्यू a की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं यहां से। 2 तो ऑब्वियसली कॉमन होके कैंसिल हो रहा है। y इंटू वाई प्राइम लिख सकता हूं, कोई इश्यू तो नहीं है, प्लस 2x इज इक्वल टू a इंटू वाई प्राइम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स a is equal to y plus 2x upon y prime. Now this is my equation number 1 and this is my equation number 2. I'll write from equations 1 and 2. What do we have? y square minus 2, a की जगह a की वैल्यू, y plus 2x by y prime into y plus x square is equal to y plus 2x by y prime का होल स्क्वायर। सो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, y सब एक तरफ ले जाइए, y डैश एक तरफ ले जाइए और सिंप्लीफाई करके फिर जो आंसर आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी। y स्क्वायर माइनस 2y y प्राइम प्लस 4x, अच्छा y बाहर भी है, 2y स्क्वायर 4xy बाय y प्राइम प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्राइम प्लस 2x बाय y प्राइम। ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर, दोनों साइड y प्राइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट डू वी गेट? y इंटू वाई प्राइम स्क्वायर माइनस, यहाँ y प्राइम में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर प्लस 4xy y प्राइम प्लस x स्क्वायर y प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू y प्राइम प्लस 2x का होल स्क्वायर। इसको भी खोल सकते हैं होल स्क्वायर को, और यहाँ देखिए ये कैंसिल हो रहा है, y प्राइम और 2y y प्राइम ये कैंसिल हो रहे हैं, माइनस y प्राइम बच जाएगा, माइनस y इंटू वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस 4x y प्राइम प्लस x स्क्वायर x इंटू वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू y प्राइम का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy y प्राइम। ये 4xy y प्राइम तो हो रहा है सर कैंसिल, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट माइनस ट्वाइस ऑफ y प्राइम स्क्वायर प्लस x y प्राइम का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल। तो ये आपको टास्क करना है। अल्टीमेटली जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं वो हट जाने चाहिए सर, बचने नहीं चाहिए। इसमें शायद कुछ और भी हो सकता हो तो देख लीजिएगा एक बार, मुझे तो और कुछ नजर नहीं आ रहा होता हुआ। ठीक है, अब और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे ये 13th क्वेश्चन है, देखिए 13th में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है। यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग स्टेज में फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ, इसलिए मैं सेकंड ऑर्डर को भी यहाँ पे एक साथ ही ले रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उससे हमको लीनियर इक्वेशन निकालनी होगी, तो वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की ही मिलेगी। फिलहाल क्योंकि मैं फॉर्मेशन आपको सिखा रहा हूँ तो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी एक बार के लिए ले लूंगा। ठीक है, बुक ने भी लिया, मैं भी ले रहा हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर।
एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लें। बिल्कुल सही है सर। इसको हमें 2 बार करना है डिफरेंशिएट, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डू यू गेट? यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू वाई में x एज इट इज, y का होगा y प्राइम प्लस y एज इट इज x का 1 इज इक्वल टू a e x माइनस b e इनवर्स x प्लस 2x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल x y डैश में, x इंटू y डबल प्राइम प्लस y प्राइम प्लस y प्राइम इज इक्वल टू a e x प्लस b e इनवर्स x प्लस 2। ठीक है जी, ओके। एक चीज मेरे को बड़ी साफ नजर आ रही है, वो ये है कि अगर मैं यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूं और उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं तो आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझको। तो थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो, इसको बोलते हैं नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। अब सेकंड की जरूरत नहीं है। थर्ड से मैं ए ई एक्स प्लस बी ई इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल देता हूँ। इसको 3 बोलता ही नहीं हूँ अभी, 2 को उधर ले जाइए। तो व्हाट डू वी गेट? एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम माइनस 2 इज इक्वल टू ए ई एक्स प्लस बी ई इनवर्स एक्स। दिस इज नंबर थर्ड फ्रॉम 1 and 3। व्हाट डू वी गेट? एक्स वाई, इसकी जगह ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द सॉल्यूशन इक्वेशन, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, सॉरी algebraic equation. This is algebraic equation corresponding to given, sorry, this is the differential equation, I'm sorry, slip of tongue. This is the differential equation corresponding to given algebraic equation, because here we have differential coefficients. This is the differential equation corresponding to given differential equation. That's it, it's done. सब जगह इतना आसानी से नहीं हो जाएगा, यहाँ बहुत आसानी से हो गया। ओके 16th में कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। देखिए, मतलब ऐसा सर्कल है हमारे पास, कोई कुछ ऐसा सा सर्कल है सर, ये उसका सेंटर है a, 0। तो जो सेंटर है उतनी उसकी रेडियस भी है। तो इक्वेशन क्या है? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी बनानी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं? सिर्फ एक, कौन? a। करो डिफरेंशिएट, a की निकालो वैल्यू, एलिमिनेट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ट्वाइस ऑफ x माइनस a प्लस 2y y प्राइम इज 0। तो यहाँ पर x माइनस ए आ रहा है आपका माइनस y इंटू वाई प्राइम, नंबर 1। तो मैं इससे a भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, रादर a फाइंड आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बजाय a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x माइनस a प्लस y प्राइम 0, दैट मीन्स a इज इक्वल टू x प्लस y प्राइम। ठीक है, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। x माइनस ए तो आ रहा है माइनस वाई प्राइम, माइनस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए की जगह x प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर। तो सर ये आ रहा है वाई प्राइम का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस 2x वाई प्राइम। क्लियरली ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो मेरी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपल बात है सर, कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्यों, मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ भी? और देखिए आगे, ये 17th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17th कह रहा है वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू e3x a प्लस bx इज द सॉल्यूशन ऑफ। अब यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, तो 2 बार करना पड़ेगा। तो इसलिए आंसर में
आंसर गिवन है मेरे को यहाँ पे, बेसिकली यही आंसर आना चाहिए मेरा। तो अब इसमें यहाँ पे आंसर गिवन है नीचे। इसमें फायदा क्या है, देखो एडवांटेज क्या है, आंसर भी पता है कि जो मेरी इक्वेशन उसको जो मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो यही आंसर आएगा। 2 बार क्यों करूंगा मैं बता चुका आपको, क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, इसलिए 2 बार करना पड़ेगा। और जब 2 बार करूंगा तो आंसर यही आना चाहिए दे रखे, y इज इक्वल टू ई पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स। आइए करते हैं, y इज इक्वल टू ई पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, what do you get? Y prime is equal to, लगेगा प्रोडक्ट रूल, e3x as it is, a bx का b, a plus bx का b, a का 0 हो जाएगा, प्लस a plus bx as it is, e3x का 3e3x। दोबारा भी करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y प्राइम का y डबल प्राइम, इसका हो जाएगा 3be3x, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल 3e3x एज इट इज इंटू b प्लस a प्लस bx, 3 आगे आएगा तो 9e3x, यानी y डबल प्राइम इज इक्वल टू 6be3x प्लस 9a प्लस bx e3x। अब मुझको सर यहाँ से a और b की निकालनी है वैल्यू और वापस ऊपर इक्वेशन में डाल देनी है। एक काम करते हैं, देखिए हम इसको नंबर 1 बोल देते हैं, इसको नंबर 2 बोल देते हैं, इसको नंबर 3 बोल देते हैं। ठीक है, आप एक बात तो गौर फरमाएंगे यहाँ पर कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली टर्म्स जो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगी। तो मैं करता हूं क्या, अप्लाई इक्वेशन 3 माइनस 6 टाइम्स इक्वेशन 2, तो y डबल डैश माइनस 6y डैश, ये कैंसिल, 9a प्लस bx e3x माइनस ये हो जाएगा 18, 6 3 18, 18a प्लस bx। थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है, क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगाना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका y डबल डैश माइनस 6y डैश इज इक्वल टू माइनस 9a प्लस bx e3x। तो a प्लस bx e3x की वैल्यू आ रही है मेरे पास a प्लस bx e3x इज 6y डैश माइनस y डबल डैश अपॉन 9, माइनस वहाँ गया तो साइन चेंज हो गया, प्लस नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। नंबर 4 फ्रॉम 1 and 4, फ्रॉम 1 and 4 क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू 6y प्राइम माइनस y डबल प्राइम बाय 9। दिस इज माई डिजायर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको चाहिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, राइट, ओके। और देखिए सर, अभी हो जाएंगे आपसे, कोई इशू तो नहीं है। 20th वैसे ही जिस मैंने अभी ऊपर किया था, जिस मैंने अभी 16th किया था वैसे ही 20th आप ट्राई कीजिएगा। अब 21 ऑनवर्ड्स ये इनको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक इनिशियल सॉल्यूशन गिवन है। तो आंसर निकालना है, आंसर निकालने के बाद सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। आंसर निकालने के बाद सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये है मेरे पास y डैश इज, पहले तो बताना है कि इसका सॉल्यूशन ये है और फिर जनरल सॉल्यूशन ये है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये। पहले देखिए y डैश इज इक्वल टू 0.5y। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, y डैश 21st क्वेश्चन, y डैश इज इक्वल टू 0.5y। y dash is 0.5y, that means dy by dx is equal to 0.5y. So now what you will do, we will now collect the like variables together, like we will collect y with dy on one side and x with dx on the other side, right? It's something which we call variable separable form.
यू माइट हैव स्टडीड दिस थिंग इन योर क्लास 12th, पढ़ा होगा आपने 11 12th में, कहीं मैथ्स में होता है ये। ठीक है, मैं अभी आगे चल के डिटेल में सेकंड क्लास में इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिलहाल के लिए एक बस वर्किंग ले रहा हूँ। आई हैव टेकन y along with dy and 0.5 dx। एक बात ध्यान कीजिएगा, ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मस्ट बी इन द न्यूमरेटर। ये सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स न्यूमरेटर में ही होने चाहिए, कोई भी इनमें से डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। इसके बाद करेंगे क्या, इसके बाद करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। इंटीग्रेटिंग both the sides, what do we get? We get integration dy by y is equal to 0.5 integration dx। so dy by y का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, sorry log y, और 0.5 dx का 1 dx है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, and then we have to add constant of integration c, right? So well, this is my solution, log y is 0.5 x plus c। अब देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिया क्या हुआ है मुझको, क्या सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है। अच्छा, y इज इक्वल टू c e पावर 0.5 x। अच्छा जी, देखिए बेसिकली हम यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो सॉल्यूशन मुझे दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये लिखने की बजाय, जो मैंने लिखा है इसकी बजाय अगर मैं ऐसा लिखूं, log y माइनस log c इज इक्वल टू 0.5 x। पहली बात तो कांस्टेंट में राइट में ऐड करूं या लेफ्ट में ऐड करूं, डजंट मैटर। और उस कांस्टेंट को किसी भी फॉर्म में, किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म में कर दूं, log कांस्टेंट, e ऑफ कांस्टेंट, 1 बाय कांस्टेंट, इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, अब मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो आंसर है, जो मुझे दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन फॉर्म में मुझे लेकर जाना है। तो ऐसा करने पर क्या होगा, मैंने देख रहे हैं ये फॉर्म नहीं लिखी मैंने, इसकी जगह मैं सीधा यहां आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आंसर को देखते हुए लिख रहा हूं। अदरवाइज अगर वो आंसर मुझे ना दिया होता तो ये एकदम करेक्ट है, यहाँ लिख के मैं आंसर छोड़ देता, मेरा ये आ गया क्या, जनरल सॉल्यूशन, कहानी खत्म। मगर क्योंकि उसी फॉर्म में लेकर जाना है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। अभी हो जाएगा log ऑफ y by c, log of y by c is equal to 0.5x। अब log कैसे हटता है एक्सपोनेंट लेने पर? टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स। e आप जानते हैं e ऑफ log x is x, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। सो आई विल गेट y by c is equal to e power 0.5x। what does it mean? This means y is equal to c times e power 0.5x, right? तो ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन में दिया था वो निकाल दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आगे एक चीज और दे रहा है मुझको, दैट y2 is equal to 2। y2 is equal to 2 का मतलब क्या है? what is the meaning of y2 is equal to 2? we have y of 2 is equal to 2। this means when x is 2, ये x ये है, when x is 2 y is 2, तो डाल दीजिए। so therefore 2 is equal to c into e power 0.5 into 2। 2 is equal to c into e, c is 2 by e। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? y is 2 by e into e power 0.5x। आप कह सकते हैं y is equal to 2 e x by 2 minus 1, 0.5x को x by 2 कह सकता हूँ, और जो नीचे e है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e पावर माइनस 1, पावर्स ऐड होंगी, x by 2 minus 1। ठीक है, दिस इज माई पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, राइट? तो सर कोई तीर नहीं मारना है, सिंपल सा अगर आपको इंटीग्रेशन आता है, बेसिक इंटीग्रेशन भी आता है, बेसिक बहुत बेसिक लेवल पे खड़ा हूं मैं, और थ्रू आउट बहुत बेसिक लेवल पे ही रहेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बड़ा ही कोई अफलातून इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सामने खड़ा हो जाएगा, आकर नहीं होने वाला। बड़े बेसिक बेसिक से इंटीग्रल हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो पता होंगे तो काम आसान हो जाएगा, नहीं पता होंगे तो पता करो भाई।
इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए ना, सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो आना चाहिए ना सर। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, मतलब ये सब्जेक्ट में हम पढ़ते समय मानते हैं कि अब हम यहाँ तक आने से पहले सिंपल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को अच्छे से थॉरली स्टडी करके आए। जब आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बारी आएगी तो हम ये मान लेंगे कि हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आता है, और मैं ऐसा मानता हूँ और जानता भी हूँ आपको आता है। ओके, अब ये देखिए सर 23rd करें एक बार। y डैश इज इक्वल टू y प्राइम इज इक्वल टू y tan x, तो y इज इक्वल टू c sec x होना चाहिए, और फिर वो भी है y प्राइम इज इक्वल टू y tan x। आइए देखते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू y tan x, और हमको यहाँ पर ये लेकर आना है दैट y इज, यहाँ देखिए थोड़ा सा स्मार्टली काम करना होगा, हमको जो जनरल सॉल्यूशन चाहिए उसी फॉर्म में आंसर लेकर आना पड़ेगा, मैनिपुलेट करके चेंज करके आ जाएगा, कोई ना कोई फॉर्मूला लगाकर आ जाएगा, जैसे पहले मैंने किया था वैसे ही। c इंटू सेक एक्स चाहिए मेरे को, तो y प्राइम क्या है सर, y प्राइम इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे हम सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं, y वाले वेरिएबल को dy के साथ, x वालों को dx के साथ, और ये बात ध्यान रखते हुए कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट शुड रिमेन इन द न्यूमरेटर। सो वी हैव इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dy बाय y, इंटीग्रेशन dy बाय y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, dy बाय y इज इक्वल टू tan x होगा, tan x dx, और फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, मैंने वो स्टेप सीधे स्किप कर दिया। ठीक है, dy बाय y क्या होगा, log y, tan x इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक है, अब c कहाँ जोड़ूं, जिसके c ऐसे ऐड करना है या माइनस करना है, फॉर दैट मैटर प्लस करो या माइनस करो डजंट मैटर, ऐसे करना है, सी की प्लेसमेंट ऐसे करने की जो रिजल्ट चाहिए वो आ जाए। मुझे अल्टीमेटली सी सेक एक्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लॉग सी कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, लॉग सी प्लस लॉग सेक एक्स, लॉग सी इंटू सेक एक्स होगा, एक्सपोनेंट लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी, और आप जानते हैं टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है, लेकिन क्योंकि मेरे को आंसर सेक एक्स में चाहिए था तो मैं उसी फॉर्म में लिखा है मैंने यहाँ पर, log c into sec x. So when taking exponent, so we e log y is y and e log c sec x is c into sec x. So we have got the general solution. Now what is the condition for particular solution? The condition is y0 is pi by 2. y0 is pi by 2. We have y of 0 is pi by 2. What does it mean? It means that when x is 0, y is pi by 2. When x is 0, y is pi by 2. ठीक है जी, तो what does it mean? Pi by 2 is equal to c sec 0. आप जानते हैं cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, sec 0 भी 1 होता है, तो that means pi by 2 is equal to c. So therefore we have y is equal to pi by 2 into sec x. This is the particular solution. This is the particular solution for the given differential equation. ठीक है, राइट समझ गए बात को। तो यहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस क्या किया है, मैंने डिस्कस किया है एक बहुत बेसिक टॉपिक, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री, और व्हाट इज ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, and how to obtain the general solution, how to obtain the particular solution. On the next lecture I will build upon these things and I will teach you what is the variable separable form and how to solve the questions using variable separable. Well, I have taken I've used variable separable here as well, but मैंने simple question लिए, थोड़े से typical question लूँगा next lecture में, फिर और आगे homogeneous equations और आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है,
होपफुली ये बात आप लोग समझ गए हैं। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपके मन में है तो देखिए मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा प्लीज़, या मेरा ईमेल एड्रेस आप मेल कीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। ठीक है जी, राइट, ओके, थैंक यू।